Good morning, dear students. Welcome to lecture number 9 of chapter number 9, that is some applications of trigonometry. Now today we are going to solve question number 13 of exercise 9.1. Previous lectures में हमने 12 तक sums कर दिए, so now last 4 sums are remaining. Again, just like previous sums, first we'll understand the question, draw a proper diagram, and based on the diagram, by using the trigonometric table, we'll try to get the answer. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. As observed from the 75 meter high lighthouse. यानी कि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? A 75 meter high lighthouse. Okay. So let us say that this is our 75 meter high lighthouse, which has been denoted as AB. Okay. अब आगे क्या है? As observed from the 75 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. यानी कि यहाँ टॉप ऑफ लाइट हाउस से वी आर सीइंग एट द सी में दो शिप्स हैं, लेकिन ये दो शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. ओके, तो ऑन द सेम साइड यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ नहीं, बोथ दिस शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. So this is our ship number 1, this is our ship number 2, both on the same side of the lighthouse. Now let us indicate them as C and D. Okay. Now the angles of depression of these two ships are 30 degree and 45 degree. यानी कि यहां से जब हम देखते हैं towards both the ships, the angles of depression are 30 degree and 45 degree. Now you have to remember that when you are looking from top to bottom, you get angle of depression. But when you are at the ground level and when you are looking at the top, then you have angle of elevation. तो यहाँ पे जब हम angle of depression लेंगे, तो angle of depression जमीन पे से तो होता नहीं, so we have to take one line parallel to the ground. Okay. Now we know that this angle is small, so obviously this will be 30 degree and this angle will be 45 degree. यहाँ पे हमारा z बन गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री. ओके. जैसे जैसे हम ये जो परपेंडिकुलर है, वो कोई टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उस तरफ आएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 होगा. अगर आप यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 लोगे तो आंसर नहीं आएगा. ओके. AB is the lighthouse, height 75 मीटर. जब आप लाइट हाउस के टॉप से देखते हो तो सी लेवल पे दो शिप्स हैं, C and D. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन और those two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find क्या करना है? The distance between the two ships. So C and D, they represent two ships. तो हमें C और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो लेट अस से दैट डिस्टेंस इज D मीटर और ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो उसको हम ले लेते हैं x मीटर. तो हमारा डायग्राम हो गया. आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम. सो हियर यू कैन सी दैट AD is height of lighthouse which is equal to 75 meter. Find क्या करना है? CD. So CD is distance between the two ships, जिसको हमने assume किया है D meters. Okay. And BC is the distance of first ship from the lighthouse, जिसे हमने ले लिया है
x मीटर। तो अब डायग्राम ड्रॉ हो गया, तो कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ही इजी होगा। यू कैन सी दैट देयर आर टू ट्रायंगल्स ADB in which theta is 30 degree and ACB in which theta is 45 degree, right? So first I am taking triangle ACB। तो आप जैसा देख सकते हो, इन ट्रायंगल ACB थीटा है 45, सो tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट में है हमारे पास AB अपॉन adjacent में there is BC। Now as I said in the previous sum also, right? Majority sums में आपको ये तीन वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, tan 30, tan 45 and tan 60। So you should know the values of these three ratios by heart। उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? तो tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1 and tan 60 होता है √3। यहाँ पे हमारा थीटा है tan 45, so as I said the value of tan 45 is 1। तो यहाँ पे आएगा 1 is equal to AB। AB represents the height of the lighthouse which is 75 meter। तो यहाँ पे आएगा 75 upon BC represents the distance of first sheet from the lighthouse which is indicated by x। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा, therefore x is equal to 75। This is my result number 1। Now let's move to the second triangle, that is ADB। ACB का यूज किया, अब हम यूज करेंगे ADB। So now in triangle ADB, as you can see, theta is 30 degree। So tan 30 is equal to opposite is AB and for tan 30 adjacent is BD। ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यू। tan 30 की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया इज 1/√3 इज इक्वल टू AB। तो AB तो अगेन हाइट ऑफ द लाइटहाउस दैट इज 75 अपॉन, अब आप यहां पे देखोगे BD इज एडिशन ऑफ BC एंड CD, तो दैट इज x plus D। तो यहां पे आ जाएगा x plus D। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, therefore x plus b is equal to 75√3। but we already have the value of x, right? but x is equal to 75 from our result 1। so therefore 75 plus b is equal to 75√3। हमें फाइंड क्या करना था? We had to find the value of small d which represents the distance between the two ships। तो इस 75 को उस तरफ ले लेंगे, d को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाया, तो दिस इज 75√3 माइनस 75। ओके, तो ये जो कॉमन आएगा 75 दोनों में, तो 75 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा √3 minus 1। And as the distance is taken in meter, don't forget to write the unit। So value of distance D is 75 into √3 minus 1 meter। अब बाद में लास्ट में क्या लिखना बाकी रहा है? Yes, you also need to write the answer statement। क्वेश्चन में क्या था? Find the distance between the two ships। So therefore my answer statement will be, therefore distance between the two ships is, as you can see, it's 75 into √3 minus 1 meter। So our sum is over। Okay, so dear students, let us solve one more sum, that is question number 14 of exercise 9.1। In this particular question, the diagram is given in the textbook, but let us be prepared for the worst case scenario, right? अगर by chance एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो उस वक्त
you shouldn't leave the sun, right? So I am teaching you how to draw the diagram. So let's understand the question first. Okay, so यहाँ पे हमारे पास क्या है? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. जब balloon इस तरह से, generally balloon goes upwards, but this balloon has reached its maximum height and with wind it is moving in the horizontal line. तो सबसे पहले we should have a pictorial representation of the girl. So suppose this is 1.2 meter tall girl, right? अब वो क्या देखती है? She is looking at a balloon at the height of 88.2 meters. Okay? तो चलिए ये हो गया balloon at the height of 88.2 meters. अब क्या पता है हमको कि the angle of elevation of the eyes of the girl, actually eyes of the girl will be here. तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बलून का, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. अब हमको बताया है कि बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम, राइट, बलून की हाइट तो वही की वही रहेगी, दैट इज 88.2. द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी अब जो बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 30 डिग्री. हमें कैलकुलेट क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून. बलून पहले यहां था, बलून यहां से, चलिए ये बलून है, इसको बी करते हैं, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, बी डैश उसकी फाइनल पोजीशन है, राइट. ये गर्ल है, तो गर्ल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय सी डी. Okay, suppose these points, let us say we take P dash P dash, and let us take this particular point as A dash. Okay, आप पॉइंट को भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं. A 1.2 meter tall girl, so CD represents 1.2 meter tall girls, spots a balloon. B is a balloon, right? Moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. यानी AB और A dash B dash both are height of the balloon. Balloon is moving in the horizontal direction. तो जब उसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है, there is no change in the height of the balloon. The height of the balloon remains the same. Now, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. यानी initial point पे the angle of elevation was 60 degree. After some time, angle reduces to 30 degree. यानी बलून जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो जो एंगल 60 था वो रिड्यूस होकर हो गया 30 डिग्री. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा BCP जिसमें थीटा होगा 60, और दूसरा ट्रायंगल बनेगा B डैश CP डैश जिसमें एंगल होगा 30 डिग्री, राइट. इसका यूज करके हमें फाइंड क्या करना है? B से लेके B डैश तक का डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, राइट. तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जो पूरा 88.2 है, राइट, लेकिन जब हम ट्रायंगल लेंगे BCP एंड B डैश CP डैश, तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑफ दिस टू पार्ट्स BP एंड B डैश B डैश, तो दोनों हो जाएंगे 87. अब आपको क्वेश्चन होगा दोनों 87 कहां से हुए? वेरी सिंपल, बलून की हाइट 88.2 है, तो ये हाइट 88.2, लेकिन उसमें से जो 1.2 है वो माइनस हो जाएगा. तो जब 88.2 में से जो 1.2 माइनस होगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट विल बी 87, राइट. सो नाउ एक्सप्लेनेशन, दैट इज CD इज हाइट ऑफ गर्ल, जो कि हमें दी हुई है 1.2 मीटर. ओके, BA एंड B डैश A डैश दोनों सेम है. क्या है? हाइट एट विच द बलून इज मूविंग, और वो हमें दी हुई है 88.2 मीटर्स, राइट.
p डैश। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? 88.2 माइनस 1.2, तो ये दो हो जाएगा 87। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून। चलो इसको मैं बता देता हूं डी मीटर, तो ये भी होगा डी मीटर्स, और ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको मैं लिख देता हूं एक्स मीटर्स। ओके, तो चलिए अब लेते हैं दो ट्राइंगल्स। पहले हम लेंगे ट्राइंगल BCP। सो नाउ इन ट्राइंगल BCP, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम ये ट्राइंगल लेंगे BCP, तब इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून वाज 60 डिग्री। सो आई विल टेक tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट में आएगा BP और एडजेसेंट में आएगा CP। तो वी नो द वैल्यू ऑफ tan 60, देयरफॉर tan 60 जिसकी वैल्यू है √3 इज इक्वल टू, एज यू कैन सी, BP और P डैश की वैल्यू है 87 मीटर्स, दैट इज 87 अपॉन CP। तो CP के लिए हमने क्या लिया है? x मीटर। ओके, तो हम x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना देंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब 29 थ्रीजा होता है 87, राइट? तो 29 into 3 अपॉन √3। अब ये जो 3 है वो √3 into √3 होता है, तो एक √3 कट हो जाएगा, तो देयरफॉर जो हमारा x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 29 into √3 मीटर। दिस इज माय रिजल्ट नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड ट्रायंगल, दैट इज B डैश CP डैश। सो इन ट्रायंगल B डैश CP डैश, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री हो जाता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट B डैश P डैश and the adjacent part is CP dash. Okay, so now we know value of tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ओके, B डैश P डैश तो 87 है। अब आप देखो ये जो CP डैश है, दैट इज CP प्लस PP डैश है, x प्लस d करेंगे, तो यहां पे आएगा x प्लस b। नाउ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा x प्लस b इज इक्वल टू 87 √3। बट वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ d, बिकॉज व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 87 √3 माइनस x। वी ऑलरेडी हैव वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है? 29 √3। सो नाउ फ्रॉम आवर रिजल्ट नंबर 1, D is equal to 87 √3 minus 29 √3। ओके, जब आप सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करोगे तो D is 58 √3 मीटर्स। तो अब आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे। सो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the balloon is 58 √3 meters. Okay, so understand the sum properly and try to solve it 1 or 2 times on your own. It looks difficult, but once you understand the concept, the sum will be very easy for you. Thank you.